स्टूडेंट रिव्यू के सेशन को या सीरीज़ को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त दो दो फीमेल स्टूडेंट्स हमारी हैं जो यहाँ पे हॉस्टल में रहती हैं और आइए उनसे जानते हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं। क्या बोलते हैं वो? अपना नाम? Iram Hashmi, I'm from Mumbai, Maharashtra. ओके। Hello, I'm Tasneem Pathan. I'm from Gujarat, basically from Ankleshwar. Alright, great. So may I please know the university name that you are studying and pursuing your Right degrees? now, we are in Kashi State University in Uzbekistan, Kashi. You too, right? यहाँ पे एक मेरे पास एक शीट है, उस शीट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसके बेसिस पे आप अपना रिव्यू हमें बताएंगे। शुरू करें। आपके हिसाब से एकेडमिक क्वालिटी और आपके यूनिवर्सिटी की एकेडमिक क्वालिटी और फैकल्टी मेंबर्स, आपके हिसाब से आपको लगता है कैसी है ये? एजुकेशन पर्पस की बात करें तो मेरे को इधर बहुत ही अच्छा लगा और लैंग्वेज बैरियर में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। Okay. जितने भी हमारे ये टीचर्स हैं सारे इंग्लिश हैं और फैकल्टी भी सपोर्टिव है। ओके, मतलब उनका एक्सेंट आपको समझ में आता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके, टीचर्स की बात करें, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, फैकल्टी में जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे उज़्बेकिस्तान के हैं या किसी दूसरी कंट्री के हैं? नहीं, सारे हमारे इंडियंस हैं और कुछ ही है जैसे हमारे उज़्बेक लैंग्वेज के लिए उज़्बेक टीचर्स हैं ओके, और एनाटॉमी के लिए यहाँ पर हमारे एनाटॉमी टीचर के भी उज़्बेक टीचर हैं। ओके, हाँ, और वो भी डॉक्टर हैं। ओके। आपके हिसाब से भी ऐसा ही है? My was Uzbek as well as English teachers. We have both like Indian and Uzbek teachers. Alright. Basically, Uzbek teachers for our Uzbek language, for improvement of our language, whereas we have Indian teachers for FMG. And what about the academic and curriculum activities? Well, about the academic, it's quite good here because Kashi State University is the only university that provides the education quantity or a quality that we require for being an MBBS students. Because I have heard about the many students, well, right? I have many friends who are in Uzbekistan only. In, for example, in Fargana, there is one of my friend. She told me about her university experience and she was not having quite good experience. When I compare my university and her university, I got to know that we have Indian teachers to crack our FMG. Alright. Whereas To help you crack the FMG examination. yeah, right? we have like English speaking teachers. Whereas where like she compared our university and she told her ki they don't have English speaking teachers well. So you can, I mean, you would be in a position to say and tell her that I'm fortunate enough. Yeah, like I am like fortunate or happy or grateful Alright, ki alright. I'm in Kashi State Okay, University. so if I ask or if you are asked to rate your university on the basis of academic quality and faculty, so first rate academic quality out of It's 10. 10 or 10. You? Yeah, of course, 10 of 10. 10 out of 10. All right. How about faculty? Faculty is good since we get Indian teachers. Being Rate- an Indian rate student, it yeah, 10. 10. Yeah. You? 10. 10. All right, great. Do you think that your university complies with all the FMGL regulations, means NMC guidelines? Does Yeah. it follow? Yeah, Does it fulfill? they do. Yeah. आपको भी ऐसे ही लगता है? Okay. Clinical exposure के बारे में क्या कहना चाहेंगे? What do you think about clinical exposure? What's the scenario here at your university? Since we are the freshers, in first semester we have clinical rotations, which are usually not provided by other university, whereas we have. So आप भी गए हैं clinical Yes, sir. exposure के हमारा लिए? फर्स्ट ईयर से ही हमारी ये क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट हो गया था। लाइक डिवाइड कर दिए थे ग्रुप्स में, ऑन्कोलॉजी एंड देन पेडियाट्रिक्स। Okay. So कितने हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने विजिट किया अभी तक? हमारा आपने तो कहाँ विजिट ऑन्कोलॉजी किया? था। 3। 3 ही। दोनों ने 3 जगह कर लिया। और आपको पता है कितने हॉस्पिटल्स हैं टोटल? एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटी के? Like around 22 hospitals. Actually, to say there are 18, but we say 18 plus. So there are more than 18 actually. And there is one update. Very soon you'll experience and would be proud enough to, tell others that you'll get a nearby hospital set up very soon in the coming time. Maybe by 2027 or by end of 2026 itself. तो आपके हिसाब से क्लिनिकल एक्सपोजर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एंड होते ही आपको मिल गया, इसका मतलब यू आर फॉर्चुनेट इनफ एंड you have got an added advantage which no other university than Kashi is providing, right? What do you think about the cost and budget involved? आपके हिसाब से बजट कैसा है? अराउंड 30 to 35 लाख।
ओके टोटल सब कुछ मिला के 5 साल का कोर्स 1 साल का इंटर्नशिप सब मिला के Yes, yeah. रहना खाना एवरीथिंग Yeah. ये सब For कुछ 6 35 लाख के years. आसपास आ Yeah. जाएगा ग्रेट सो अफोर्डेबल है जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है वो भी सोच सकता है Yeah. एक मिडिल क्लास का इंसान Hmm. जो शायद इतना भी पे ना कर सके पर उसके पास ऑप्शन है Hmm. मैंने तो यहाँ पे फैकल्टी मेंबर से बात किया अथॉरिटी से बात किया और पता लगा कि पार्शियल पेमेंट करना पॉसिबल है एक बार में 1 साल का पूरा पेमेंट भी नहीं करना है एक बार में 6 साल का भी नहीं करना है Hmm. आप 6 महीने का सेमेस्टर वाइज पेमेंट कर सकते हैं Yeah. They have. और अगर इन केस कई बारी सेमेस्टर वाइज पेमेंट करने में भी कुछ लोग किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से टाइमली पेमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो उनके लिए भी एक स्कोप है दैट दे कैन कम अप विद एन एप्लीकेशन वी विल गेट इट अप्रूव्ड बट ओनली फॉर द जेन्युइन केसेस Yes, तो of एक course. ऑप्शन ये भी है तो मतलब सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से तैयार है राइट ग्रेट अ क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप जब इंडिया में थे घर पे एवरीबडी आई मीन एवरी स्टूडेंट और एवरी एस्पिरेंट डज इट क्या करता है वो घर पे रह करके अपनी रिसर्च करता है कौन सी कंट्री कौन सी यूनिवर्सिटी उसके लिए सही होगी वो अपने हिसाब से चूज करता है उसके पेरेंट्स भी चूज करते हैं गार्जियंस भी चूज करते हैं टीचर्स भी देयर आर सो मेनी पीपल टू गाइड एंड काउंसिल दैट एस्पिरेंट राइट आपके हिसाब से कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपने उज्बेकिस्तान चुना एंड ऑन द अदर हैंड उज्बेकिस्तान में भी आपने काशी स्टेट यूनिवर्सिटी चुना व्हाट मेड यू डिसाइडेड आपके हिसाब से सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेफ्टी पर्पस के लिए हमने देखा था उज्बेकिस्तान एंड सेकंड मेरा ऐसा था ये करशी के लिए हॉस्टल बहुत बेटर थे इंडिया ओके एज ऑलराइट कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ओके वो भी यूनिवर्सिटी हाँ। कैंपस के अंदर ओके और यूनिवर्सिटी ये 2 पॉइंट्स है मेन आपके लिए व्हाट अबाउट यू First of all, it's about the safety. It's one of the safest country according to me for right now. And like second, being a Muslim girl, like Uzbekistan is a Muslim country, so yeah, it's a great scope for a Indian and a Muslim students to being here. ऑलराइट ओके बेसिकली ये 2 पॉइंट्स पे आपने 2-3 Yeah, पॉइंट्स and पे it's आपने beautiful, clean, and most important, the people of Uzbekistan are very friendly. ऑलराइट They are friendly as well as supportive. They you don't must make have us gone through feel. certain data and you must have done your Yeah. own research Yeah, so you must have found a list of several universities in different countries yeah. so you must have decided on the basis of your research right Yeah. okay all right another question what would you like to tell and say about hostel how is your hostel Hostel is quite good. Like it's clean, big, and we don't have congested hostel like others. all right Like we usually have 2 to 3 you students have in enough each room. space to breathe Yeah, all it's right. not congested. all right okay so if you have to rate your hostel Hmm. how would you rate It's again 10. out of 10 It's 10 10. out of 10 10. आप क्या कहेंगे 10 आउट ऑफ 10 हॉस्टल में कुछ अच्छा कुछ बुरा ऐसा कहना चाहेंगे आप नहीं बुरा तो नहीं है ये सेफ्टी पर्पस के लिए ये इनका एक रूल एंड रेगुलेशन है लाइक 8 के बाद नहीं जा सकते बाहर हाँ। ओके तो ये अच्छा ही है ना आप दूसरे ये कंट्री में अच्छा आ रहे हैं है, माँ like- बाप ने आपको भेजा हाँ। है वो भी कंसर्न है कि हमारे बच्चे को कौन ख्याल रखेगा आपको ऐसा भी महसूस कराने की कई बार ऐसा भी है लोग यहाँ पे हमारे जो स्टाफ हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए ही ये सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं आप दूसरी कंट्री में हैं हर माँ बाप चाहते हैं ठीक है उनको लग गया कि चलो दूसरी कंट्री सेफ है मैनेजमेंट अच्छा है सब कुछ ठीक है पर वो भी तो अश्योर होना चाहेंगे जब उनको ये पता लगेगा कि एक टाइम बाउंडेशन है हर चीज़ सीसीटीवी सर्विलांस्ड है वहाँ लोग हैं मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए Yes, sir. तो वो एक तरीके से सेटिस्फाइड भी होंगे इस चीज़ को लेकर के थोड़ी बंदिशें हैं तो बच्चे के लिए ही है वो हाँ, उसकी वो हमारे सेफ्टी के लिए, लिए of course. खासकर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है तो इस वजह से हमें टाइम बाउंडेशन रखनी पड़ती है तो आपको इसमें कोई कंसर्न नहीं नहीं है सर आपको अगर रेट करना हो हॉस्टल को कितना Sir, देंगे 10 आउट ऑफ 10 ग्रेट व्हाट अबाउट मेस हाउ इज योर मेस मैथ्स तो बहुत बेटर है लाइक अब मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि इंडिया और या दूसरे कंट्रीज में है हाइजीन पर्पस से भी देखते हैं और क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत बेटर है इधर की ओके मतलब क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही आपको अच्छी लगती है अगर आपको रेट करना हो मेस को 10 out of out 10? 10 10 out of 10 what would be your view I would give 9. okay Yeah. because you are expecting something more Yeah. all right it's good that you expect Hmm. at least we can say there's a scope Yeah. we can improve Mm. right Yeah. but that would benefit you as well anything that is Still we supposed miss to our parents. anything food. that requires to be improved Hmm. would be for everyone
not only about those who are expecting more, right? Mm. Okay, all right. How do you find the living conditions? आपको कैसी लगती है यहाँ की लिविंग कंडीशन? बहुत ज़्यादा बंदिशें हैं, बहुत प्रॉब्लम है, लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, तो ये अच्छा है, बुरा है, कैसा लगता है आपको ये सब? सर सीसीटीवी पे कैमरास का मेरे को ऐसा वो नहीं है, क्योंकि ये हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए हम्म। फर्स्ट हम अब्रॉड में हैं, हम्म, और मेरे को ऐसा लगता है डिसिप्लिन तो है यहाँ पे, हम्म, लाइक शोर वगैरह नहीं। ऐसा मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर हर टाइम, शोर शराबा हाँ, हुआ करता था, ठीक, तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा लगा, फिर अभी थोड़ी सी आदत हो गई है यहाँ के लोगों में। ओके। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपकी इस जर्नी में, जहाँ पे आप डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने के सपने को लेकर के आए हैं, तो आपको सुकून तो चाहिए होगा पढ़ने के लिए, खासकर फोकस करने के लिए। डिस्टर्ब करने वाले लोग यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेंगे, जो भी होंगे वो इंडिया के ही मिलेंगे, बाकी यहाँ के लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? लिविंग कंडीशंस आपके लिए अच्छी हैं, खाना अच्छा है, Yeah. सुकून है, Yeah. रूल्स रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है, सब कुछ, सीसीटीवी लगे हुए हैं हर जगह, सेफ्टी के लिहाज से ठीक है, लोग अच्छे हैं, आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस कराते होंगे दैट यू आर अ सेलिब्रिटी, They do. है ना? Mm. अच्छा लगता है, Yeah. प्राउड फील होता है, Yeah. राइट? ओके। तो मतलब आप ऑन एन एवरेज आकर आपको बोलना पड़े कि क्या बेहतर था, जब आप घर पे थे वो ज्यादा अच्छा वक्त था, या अभी आप यहाँ पे हैं तो ये, अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप क्या कहेंगे? It's good here. इट्स गुड हियर। Mm. घर पे मतलब आपका मन नहीं लगता था? Like it's good, but MBBS is something that everyone dreams of. For this entire 6 years of course duration, you need to focus. And if you focus these, if you have focus for only this 6 years of time duration, Mm. you would be benefit Mm. lifelong. Yeah. Trust me. Mm. So that is wherein I would say, if there is requirement of a bit of sacrifice, आपको कभी भी ऐसा लगा कि यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो एक बैरियर है? जो लैंग्वेज यहाँ चलती है वो इंग्लिश तो है नहीं, ना हिंदी है, या तो रशियन है, या तो उज़्बेक है। तो आपको बैरियर कभी लगा कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, मुझे तो आती नहीं है? क्योंकि आप जब आए ना आपको रशियन आती है ना उज़्बेक आती है, कैसे मैनेज किया आपने? तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि ठीक है, ऐसे हाथों से समझा रही थी मैं, मुंह से बोल, ऐसा मुंह से तो नहीं ओके होगा है। ओके, हाँ हाँ। फिर इंग्लिश में यहाँ पर इतने ज़्यादा थे नहीं, तो कुछ हमारा, कुछ लोगों को हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स हाँ, आते हैं, कुछ को अच्छी इंग्लिश हाँ, आती है, ज्यादातर को थोड़ी थोड़ी एक आध वर्ड्स आते हैं। हम्म, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हिंदी के भी कुछ वर्ड्स पता होंगे। हाँ हाँ, ओके, तो लोग समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बहुत ऐसा काइंड है। है, ये हमारा ओके। समझते हैं, और उज़्बेक लैंग्वेज भी हमारा था। तो अभी आपको तो कितने कितने मंथ्स हो गए यहाँ पे? 3 to 4 months हो गए। 4 मंथ्स में आपने कुछ चीजें सीखी, कुछ लोकल लैंग्वेज, उज़्बेक हाँ। लैंग्वेज सीखी? कैसे? उज़्बेक टीचर मतलब यूनिवर्सिटी में हाँ, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस, प्रोवाइड किया लैंग्वेज गया यहाँ क्लासेस पे, हाँ। हैं, ठीक है। तो इतनी आपको बेसिक नॉलेज तो हो गई होगी कि अब छोटा थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया। अब आप, मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में आते आते या सेकंड ईयर पूरा होते होते फ्लुएंट हो जाएंगे आप। यस सर। तो ये आपको आपके एमबीबीएस जर्नी में भी हेल्प करेगा, और आने वाले टाइम में आपको एक और लैंग्वेज सीखनी होगी, सिखाई जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री, रशियन, रशियन। वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस डिग्री मिलेगी, साथ साथ 2 लैंग्वेजेस सीख जाएंगे, तो ये एडेड एडवांटेज होगा बीइंग अ डॉक्टर। आप कहीं के भी पेशेंट को डील कर सकते हैं। इंडिया में तो है ही, दुनिया भर के लोग आते हैं। रशियन कंट्रीज में जा रहे हैं, रशियन बहुत सारी कंट्रीज में चलती है, वो अगर आपको आती है रशियन तो आपके लिए स्कोप है, आप वहाँ भी जाके कर सकते हैं प्रैक्टिस। उज़्बेक आती है तो उज़्बेकिस्तान में तो कर ही सकते हैं। मतलब सेंट्रल एशिया के अलावा और भी दूसरी कंट्रीज में आपके लिए स्कोप है करियर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर इनिशियली था, अभी ठीक है आपके लिए भी, ठीक है। क्लाइमेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्लाइमेट आपको कैसा लगा जब आप आए थे तब, अभी, दोनों ही बताइए। लाइक थोड़ा इधर है, विंटर है, प्रॉपर विंटर मेरे को ऐसा फील होता है। तो आपको मतलब हॉस्टल कैंपस में रह के, यूनिवर्सिटी के अंदर रह करके महसूस होता है? नहीं, हॉस्टल में तो हमारा हीटर रहता है, सेंट्रल हाँ, हीटिंग सिस्टम हाँ, है, तो नहीं पता लगता, नहीं, बाहर हाँ, निकलते हैं तो पता लगता है। स्नोफॉल अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। मान लो आप इंडिया में हो, हम्म, आपको हिमाचल, शिमला वगैरह ऐसी जगह पे जाना है, तो कैसे जाओगे? फ्री में? नहीं, मेरा तो फर्स्ट टाइम था स्नोफॉल में। ओके, मेरे को better पैसे लगा। दिए आपने इसके लिए? नहीं, पढ़ने के लिए दिए? उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बहुत कुछ मिल गया आपको, उनमें से एक ये है, वेदर, अलग अलग वेदर, अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज सीखने को मिल रही है। स्नोफॉल एंजॉय कर लिया, इतना स्नोफॉल शायद ही इंडिया में कहीं होता हो, है ना? जहाँ तक एटमॉस्फेयर या वेदर की बात है,
ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क है पर मैनेजेबल है क्योंकि यहाँ पे क्या है सेंट्रल Centralized हीटिंग heating. सिस्टम हम्म, पता नहीं चलता हॉस्टल के अंदर पता लगता है नहीं तो क्लाइमेट आपको आपको कैसा लगा Climate is quite good here. Like Mhm. I'm a migraine patient, so I require a cold climate. So Okay. it's quite good for So me. that's favorable for you. Yeah. Safety के बारे में I mean what would you like to say about the safety here? About safety, it's good here because we have some rules and regulation here. Like for girls, it's quite good because in university we have some rules for girls especially. Like we are not allowed to go outside by 7:30 or 7. Mm. So do you ever feel offended? No. Why is it so? No, we don't feel offended because like it's quite for our safety only and Right. it's good too. So our parents we won't make them worry about us. I mean that is something which all the girls, not only girls, the boys also should Yeah, it's be abide by. same for both Because girls and boys. all our parents they are more concerned about our health, our safety. Yeah. Because they've sent us to some different country. All right, that's good. It shows that you care for your family as well. Yes, they are Right, quite that's protective. great. May all the girls should think like you. Mhm. Would you like to say anything about the environment in the hostel, inside the hostel, outside the hostel, in your academic block, entire campus, outside the campus, when you're in the market, when you're traveling somewhere, when you are at a tourist spot or anywhere? You must have visited different places, right? Yeah, we do. So how do you find the environment? Is it good, favorable? People are Yeah. good? Yeah, it's Okay. favorable here. Is it happening? Mm. Okay, great. How about the local people? Are they good? Bad? Local people are very friendly. Okay. They are always supportive. and Even in helpful India, to there are us. people are there very friendly. Mm. Yeah. But they are super friendly here. Okay, Mm. and they are educated as well. Yeah, they I mean, in won't- India as well, people Ah. are educated. But if we talk about the literacy rate, Mhm. so that's something which brings our attention at. That is, in India, there are certain states, example Kerala, wherein you will find 100% literacy rate. Mm. Likewise, in entire country, this country, Uzbekistan, the literacy rate is 100%. Yeah. So that makes a difference wherein Mm. people have different mindset. They perceive differently. Mm. They respond. They care for the people. Mm. They show that they are best hosts. Right. But in India, there are certain geographical locations or certain states or certain cities, specific cities. Not everywhere you go, you'll find good people. Mm. But here, I have heard from other people, other students as well. They say that they compare and they say that they found a bit of, what to say, improved, what to say. Their response was some of the other way in favor of Uzbekistan. Yeah. Yes, sir. So, what would you like to say about it? How are local people? Local people are friendly. Mhm. They will always support you. Like they won't make us feel like that we have language barrier. Even if they don't know our language, they will use translator. Ah. They just want to communicate with us, Okay. which makes them more friendlier. Yeah, that's right. आपके हिसाब से सर वही है यहाँ के लोग मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सपोर्टिव है काइंड है लैंग्वेज बैरियर में प्रॉब्लम नहीं आती है तुरंत ये लोग ऐसा मगर translator- आपको ऐसा भी लगता होगा कि कुछ वक्त अगर और आप यहाँ रह गए तो लोग ही आपको इतना सिखा देंगे कि आप जो लैंग्वेज की क्लासेस आपकी यूनिवर्सिटी में हो रही हैं और जल्दी समझ में आने लगेगा Great. तो कुछ मुझे बोल के बताइए लैंग्वेज फॉर्मली सलाम करना फिर देन उनको खाए ले क्या मतलब है इसका गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ओके गुड आफ्टरनून आपने क्या सीखा Like general greetings, then like relations. कैसे मतलब इंट्रोड्यूस करना कुछ है. बोल के बताएं आप तब Like- मुझे समझ में आएगा Okay, I'll introduce myself in Mhm. Uzbek language. Mhm. Assalamu alaikum. Mhm. Meaning Ismin Tasnim Pathan. Mhm. Man Hindustan man. मतलब 2-3 महीने में इतना काफी है Yeah. है ना Mm. हिंदी सिखाते हो आप लोगों को हाँ. पूछते भी होंगे लोग ना हाँ. मजा आता है ना हम्म, ऐसे बहुत कम्युनिकेट ज्यादा। करने में हम्म। ठीक है कुछ फ्रेंड्स बने आपके दोनों Yeah. के कहाँ के मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो दूसरे लोकल स्टूडेंट्स है वो या बाहर Like university के campus के अंदर ही. ओके ओके कैसे हैं वो लोग अच्छा Friendly. Mm. राइट साथ में खाना पीना सब करते हैं या हाँ, अभी सिर्फ like- बात होती है Okay. हाँ, Like ओके they invite us for like Orsh party and something. ओके आपके हिसाब से यहाँ का लोकल फूड सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है आपको और
ऑश, अब तक क्या पसंद आया समसा, सबसे ज़्यादा? या इनकी टी और समसा, ओके। ऑश। अब मुझे इतनी बात करके ये तो समझ में आ गया कि आप लोग खुश हैं यहाँ पे आके। मतलब आपके पेरेंट्स ने जो डिसीज़न लिया, वो अच्छा था। और एक्चुअली पेरेंट्स जो डिसाइड करते हैं ना, वो अच्छा होता है। हमें रियलाइज़ बाद में होता है। तो अभी आप सैटिस्फाइड हैं, खुश हैं, यस सर। तो लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं मेरे ख़्याल से। आपको मान लीजिए कि आपने अपने लोगों को आपने रिकमेंड करना है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जिससे लोगों को पता लगे कि उनको उज़्बेकिस्तान में कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बार एडमिशन के लिए सोचना चाहिए, देखना चाहिए, डिटेल्स के बारे में पूछना चाहिए? I would recommend other students to please come and join us in Kashi State University, and I would recommend you to come here as soon as possible so that we all can enjoy this great MBBS journey together. राइट। इधर ज़रूर विज़िट करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी है। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी का, और फूड क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बेटर है इधर की। हॉस्टल मेस का तो बोल दिया है, हॉस्टल भी इधर बेटर है, यहाँ की फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. मैं दुआ करता हूँ कि आप अच्छे इंसान बनें। आपकी डिग्री पूरी होने के बाद आप लोगों का एफएमजीई एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, जहाँ भी रहें, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत खूब कमाएँ, अच्छे इंसान और अच्छे डॉक्टर दोनों एक साथ बनिएगा। अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं लोग, पर इंसान भूल जाते हैं। यस सर। तो इंसान अच्छे हमेशा याद रखिएगा आगे, क्योंकि इंसान का ही ट्रीटमेंट ज़्यादा करेंगे आप। अगर वेट नर्सिंग में जाएँगे या वेटनरी साइंस में जाएँगे तो फिर तो अलग बात हो जाएगी। पर अभी जिस कोर्स में आप, उससे आप इंसानों का ही इलाज ज़्यादा करेंगे। तो इस दुआ के साथ हम अलविदा लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। विश यू ग्रेट लक।